Dear students, myself Vijay Pratap Singh. Today we are going to discuss about goods and service tax. Very short name we are going to introduce GST. It's a very important part of your taxation and nowadays we know very well about it. And these all things we are following in our business activities and in our taxation. Okay, so dear students, once again listen, goods and service tax, and short name we can say GST. Now we are going to know about the introduction of GST. Introduction. In front of you, I have written introduction of GST. This is a very important part. With the help of that, we can able to calculate these all things. GST is the very important part in our taxation and tax services. With the help of that, we can able to know these all things. What it is coming inside in the goods and services tax. We have to discuss today. Introduction. So first we have to know GST was introduced in India with effect from July 2017. So listen it carefully. GST was, very important line is given in front of you. What I had underlined it. So see it very carefully and make a note. GST was introduced in India with effect from July 2017. ये पहली बार भारत में इंट्रोड्यूस की गई जुलाई 2017 में. जो GST अभी फॉलो किया जाता है ये पहली बार स्टार्ट किया गया ऑन फ्रॉम जुलाई 2017 अंडर द अर्लियर ट्रांजैक्शन सिस्टम from indirect taxes. Once again listen, earlier transaction system from indirect taxes, various types of taxes were levied such as service tax, VAT, excise duty, etc. These all things are coming inside in the GST. Once again we have to listen. GST was introduced in India with effect from July 2017 under the earlier transaction system from indirect taxes. Various types of taxes were levied such as service tax, VAT, excise duty, etc. All are the given example of between that. Once again we have to listen. GST, goods and service taxes. GST is the tax on supply of goods and services. Under GST on distribution of them made between goods and services. हम जानते हैं जीएसटी के अंतर्गत जो टैक्स लगाई जाती है गुड्स और सर्विस टैक्स का नाम ही जीएसटी होता है. जो सामान हम खरीदते बेचते हैं उसी पे जीएसटी लगाई जाती है. इसका साधारण सा अर्थ है एक देश एक टैक्स, इसलिए जीएसटी को भारत में लाया गया. जीएसटी को भारत में लाने का प्रमुख उद्देश्य ये था कि महंगाई को कम किया जाए. हम 4 जगह टैक्स देते हैं, इससे बढ़िया है हम एक जगह टैक्स दें और एक टैक्स दें जिससे हमें अधिक से अधिक फायदा हो और हमारे देश का विकास हो और महंगाई दर कम हो. इसलिए हम जीएसटी को बाजार में लाए और कब लाए? 2017 फ्रॉम जुलाई. वंस अगेन लिसन. इट विल मोस्टली सब्सटेंस ऑफ इंडिया इनडायरेक्ट टैक्सेस. ये इनडायरेक्ट टैक्स लेने का सबसे इम्पोर्टेंट तरीका है. जैसे गुड्स एंड सर्विसेज बाय द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया.
ये किसके द्वारा चलाया जाता है? सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा। वी कैन से जीएसटी इज द सिंगल टैक्स एट ए नेशनल लेवल। जीएसटी एक सिंगल टैक्स है जो नेशनल लेवल तक लगाया जाता है। वी कैन से वी लीव एट द स्टेज राइट ऑन द मैन्युफैक्चरर of the final consumption. In simple words, we can say under GST, every person is eligible to pay tax of output and established to get input tax credited. Otherwise, we can say on the tax paid on the input, therefore it is a tax on valuation of addition only. Another thing, it is a very important part of our educational system. Tax we are following day to day. Tax is a coming inside in India in GST to make good communication in the taxation. जीएसटी को हम फॉलो इसलिए करते हैं कि जीएसटी के माध्यम से हम अपने टेक्निक को अच्छा कर सकते हैं, टैक्स सिस्टम को अच्छा कर सकते हैं। जहां हम 4 जगह टैक्स देते हैं वहीं एक जगह टैक्स देंगे और हमें राहत मिलेगी, महंगाई कम होगी। हम 4 जगह टैक्स देंगे, उससे बढ़िया हम एक ही टैक्स देते हैं, जीएसटी। फॉर एग्जाम्पल, जीएसटी वी आर गिविंग इन स्टेट एंड आउट ऑफ स्टेट आल्सो। हम भारत में कहीं भी व्यवसाय करते हैं, हमें जीएसटी देना है। जीएसटी 2 तरह से लगाई जाती है, पहला अपने राज्य में, दूसरा दूसरे राज्य में। ठीक, जैसे आपको बताया गया जीएसटी में पहला हो गया, अगर हम यूपी के निवासी हैं, यूपी में ट्रांजैक्शन करते हैं, मतलब सामान हमने गोरखपुर से खरीदा और कानपुर में बेचा, अगर वो यूपी में ही दोनों काम हो रहा है तो जीएसटी देनी है। और उस पर कौन कौन से लगेंगे? सीजीएसटी और एसजीएसटी दोनों जोड़ के हमें टैक्स देना है। बट आउट ऑफ स्टेट व्हेन वी हैव टू गो, हम जब अपने राज्य से बाहर ट्रांजैक्शन करते हैं, गुड्स एंड सर्विसेज भेजते हैं, तो हमें आईजीएसटी देना होता है। आईजीएसटी अपने राज्य से बाहर दूसरे राज्यों के लिए निर्धारित किया गया है, इसलिए आपको बताया गया जीएसटी। ठीक है, अब एक बार और सुन लीजिए, एक होता है इंटर स्टेट, एक होता है आउटर स्टेट। अपने राज्य में क्या जीएसटी है और दूसरे राज्य में क्या जीएसटी है, उसके लिए आपको जानना है सीजीएसटी, एसजीएसटी एंड आईजीएसटी मींस आउट ऑफ स्टेट, अनदर स्टेट। आफ्टर दैट वी आर कमिंग द नेक्स्ट पॉइंट, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। In front of you, I had made one structure, and this structure is a very important part for you. Here in middle, I had written GST. You can see, यहाँ हमने बीचों बीच GST को लिखा हुआ है। अब इस GST को हम एक्सप्लेन करते हैं कितने भागों में, 1, 2, 3, 4, 5 and 6। हम 6 भागों में इसका डेफिनेशन दे सकते हैं। GST हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्यों? हम पहला पढ़ते हैं, 1 नेशन 1 टैक्स। एक देश, हम भारत के निवासी हैं, मतलब एक देश है तो एक टैक्स होना चाहिए, इसलिए हमने जीएसटी को भारत में लाया। अलग अलग जगहों पे अलग अलग टैक्स देने से बढ़िया है कि हम एक टैक्स दें, और एक टैक्स देने से हमें छूट मिलता है और महंगाई कम होती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप 10-10 रुपये 4 जगह टैक्स देते हो तो 40 लगना है, और एक टैक्स देते हो 25 रुपीज़ ही, तो आपके 15 रुपये बच जाते हैं, जिससे महंगाई कम होगी, सामान का दाम बाजार में अच्छा होगा। दिस इज द इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द जीएसटी। अनदर थिंग इज गिवन इन फ्रंट ऑफ यू, सेकेंड वन, बिगेस्ट टैक्स रिफॉर्म। ये टैक्स बनाने का सबसे बड़ा प्रक्रिया है, सबसे बड़ा बदलाव भारत में लाया गया। ठीक है, 2017 में ये भारत सरकार द्वारा संचालित की गई। जो भी उस समय सरकार को चलाता था, जो भी प्रधानमंत्री रहे होंगे, उन्होंने देश के संचालन में इस काम को आगे बढ़ाया, जीएसटी को लागू किया। मीन्स एक देश एक कर,
लेकिन ये सबसे बड़ा रिफॉर्म सिस्टम है, देश के विकास और बदलाव में सबसे बड़ा कदम था, सबसे बड़ी भूमिका थी, जो अभी हम जीएसटी को पढ़ते हैं। दैट्स व्हाई जीएसटी इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। ओके, फर्स्ट वन इज वन नेशन वन टैक्स, सेकंड वन इज बिगेस्ट टैक्स रिफॉर्म, ये टैक्स परिवर्तन या टैक्स बनाने का सबसे बड़ा कदम उठाया गया भारत सरकार के द्वारा। तीसरा आपका है मिक्सचर ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस, हमारा जीएसटी इनडायरेक्ट टैक्सेस का मिक्सचर है, मिक्स जीएसटी हमसे अप्रत्यक्ष रूप से ली जाती है जो हमें पता नहीं चलता है। For example, when you will go to purchase any goods and services from the high-tech cities, high-tech shopping malls, they have to take amount plus GST. It should be included in your goods and services. For example, अगर हमने 10,000 की वॉशिंग मशीन खरीदी तो उसमें GST ऐड होगा और हमें GST प्लस वॉशिंग मशीन का मूल्य इनडायरेक्टली देना है। This is the important part. Once again come on the point, mixture of indirect taxes. It is the mixture of indirect taxes. अप्रत्यक्ष रूप से जीएसटी हमारे द्वारा ली जा रही है। For example, I have pen in my pocket. For example, it is a 50 rupees. अगर मैंने रेक्टो का पेन अभी लिया है, 50 रुपया उसका दाम है, तो इनडायरेक्ट टैक्स उसमें जुड़ा होगा, चाहे वो 1 पैसे ही हो। हमने पेन खरीदने में सिर्फ 50 रुपए ही दिए हैं, बट टैक्सेस आर इंक्लूडेड देयर। ओके, दिस इज द इंक्लूडेड इनडायरेक्ट टैक्सेस। साधारण सा एग्जांपल हम आपको देते हैं, आप बाजार में चॉकलेट खरीदते हो, 50 रुपए 60 रुपए 100 रुपए का एक चॉकलेट भी लेते हो, तो वहां लिखा होगा MRP 100 रुपीज, इन ब्रैकेट इंक्लूडेड ऑल टैक्सेस। मतलब मूल्य 100 रुपया है, लेकिन सारे टैक्सों को जोड़कर 100 रुपया दाम लगाया गया है और आप टैक्स इनडायरेक्टली दे रहे हैं। आप 5 रुपए का चिप्स भी खरीदेंगे तो उस पर भी प्रिंट होगा RS 5 रुपीज, इन ब्रैकेट इंक्लूडेड ऑल टैक्सेस। ओके डियर स्टूडेंट्स, don't forget it, it should be very important part for you. Next one is coming in front of you, dual GST. Fourth one, with the help of that we can say we are getting a lot of effect from the government. That's why dual GST is a very important part of our goods and services. So that's why it is also very important motive for getting जीएसटी को लागू करने से ये सारे बेनिफिट्स हमें प्राप्त होते हैं। नेक्स्ट है आपका 5वां, फिफ्थ वन हियर, रिमूव कैस्केड इफेक्ट। विद द हेल्प ऑफ दैट वी कैन रिमूव दीज टाइप्स ऑफ इफेक्ट फ्रॉम द मार्केट। अगर कुछ गलत प्रभाव बाजार में है, महंगाई बढ़ रही है, दाम बढ़ रहा है, तो उसे हम रिमूव कर सकते हैं। अभी मैंने आपको एग्जांपल बताया, अगर हम 4 जगह टैक्स देते हैं 10-10 रुपए तो 40 रुपए होता है, लेकिन एक जगह एक ही टैक्स दे देते हैं 25 रुपए एक साथ ही, तो 15 रुपए का हमें छूट मिल जाता है। मीन्स हमारे दाम 15 रुपए बाजार में सस्ते मिलेंगे। मतलब जीएसटी आने से हमें बहुत अच्छा फायदा हुआ है। अगला टॉपिक आपके सामने है, लास्ट वन 6, चेंज ऑन सप्लाई। विद द हेल्प ऑफ जीएसटी आवर सप्लाई विल आल्सो इफेक्ट। हमारे सप्लाई पे भी प्रभाव पड़ेगा और हमारी सप्लाई भी क्या होगी, प्रभावित होगी, मतलब बदल जाएगी। क्लियर? इट शुड बी इंक्रीज मोर एंड मोर एंड जीएसटी इज द गिविंग मोर एंड मोर इफिशियंसी। जीएसटी आने से हमें फायदा है, हमें सप्लाई पे प्रभाव पड़ रहा है, सप्लाई बढ़ रही है और डिमांड भी बढ़ रहा है। क्यों? जब दाम हमारे सस्ते होंगे तो। ठीक है, जीएसटी आने से आपको बताया गया कि एक राष्ट्र है तो
एक टैक्स होना चाहिए जिससे जो सामान हम दिल्ली में खरीदते हैं वो सामान गोला में, गोरखपुर, हरियाणा, यूपी, बिहार कहीं भी खरीदो एग्जैक्ट दाम पे मिलता है, तो जीएसटी का लगाने से फायदा है हमें। ठीक है, इससे क्या फायदा होगा, सेम सामान हम भारत के किसी भी कोने में खरीदेंगे तो एक प्राइस में मिलेगा और एक टैक्स होगा। इसी का मतलब था जीएसटी को भारत में लाने का। ठीक है, अब सबको पता है हमारा देश एक है लेकिन राज्य अनेक है। अब अनेक राज्य होने के कारण हमें अलग अलग टैक्सेस को देना पड़ता था, इसलिए भारत सरकार ने ये रूल बना दिया कि सारे को मर्ज करके हम एक नियम बनाते हैं, गुड्स एंड सर्विस टैक्स जीएसटी, जो 2017 में पारित किया गया, लाया गया, स्टार्ट किया गया। और एक देश एक कर का नारा हमने लगाया जिसे जीएसटी कहा गया। अब जीएसटी बाजार में पूरे भारत में कंपलसरी है, चलाई जाती है और मानी जाती है, और हमारी महंगाई कुछ न कुछ घट रही है और बढ़ रही है, मतलब टैक्स हमें कम देना पड़ रहा है, इनडायरेक्टली हम टैक्स को दे रहे हैं। बट जीएसटी इज ए इंपॉर्टेंट पार्ट। वंस अगेन लिसन, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्सेस इन जीएसटी, शॉर्टकट में जीएसटी शॉर्ट नेम है। जीएसटी के कुछ प्रमुख काम बताए जा रहे हैं। पहला है वन नेशन वन टैक्स, सेकंड बिगेस्ट टैक्स रिफॉर्म, थर्ड वन इज a mixture of indirect taxes, fourth one is given in front of you, dual GST, fifth one is given in front of you, remove casting effect, and after that last one is given in front of you, change in supply. So when GST came in the market, these types of effect we are getting. So dear students, according to that you have to make your notes. It's a very important part. Next one you have to come in front of your goods and services tax GST. In front of you I have written here goods and services tax GST. What is the important part we are getting with the help of that? So one by one I have written one more some important should be there. अब आपके सामने जीएसटी के कुछ प्रमुख कार्य और दिए गए हैं, जीएसटी से हमें क्या फायदे हैं। ठीक है, जैसे लिखा है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स जीएसटी, फर्स्ट यू हैव टू कम ऑन द कैटेगरी comprehensive tax level supply, means GST is the providing us comprehensive tax level supply. With the help of that we can say comprehensively GST is a very important part for us. Second one is a dividend, mostly suitable are indirect taxes, mostly substitute of all indirect taxes. हम इसमें अपने सारे इनडायरेक्ट टैक्सेसों को एक्टिवेट कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। आप देख सकते हो मोस्टली सब्स्टिट्यूट ऑल इनडायरेक्ट टैक्सेस आर कमिंग इनसाइड इन आवर जीएसटी एंड आर इंटररिलेटेड विद द हेल्प ऑफ एरो। आई हैड शोन यू, आपको दिखाया गया है एरो के माध्यम से। ये फर्स्ट स्टेप है तो ये सेकंड थर्ड से जुड़ा है और थर्ड फोर्थ से। सो वंस अगेन वी हैव टू कम ऑन द पॉइंट। थर्ड वन सिंपल सिंगल टैक्स लिव्ड एट ऑल स्टेजेस। जीएसटी लाने से हमें क्या फायदा है कि हम साधारणतः एक टैक्स को हर लेवल पे फॉलो कर सके। दैट्स व्हाई जीएसटी इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट फॉर आवर सर्वाइवल and our goods and services. Next step is coming in front of you, tax on value addition. ठीक है, when our value is going to add with the help of taxes, our value is going to add. Simple words we can say tax on value addition. हमारे वैल्यू का अगर मूल्य बढ़ता है तो टैक्स इसमें इंक्लूड होता है। And last one is given in front of you, remove cascading effect. With the help of that
we can able to make these types of profiting effect, and these are the very important part of our daily life. So now dear students, these are the things. Now we have to discuss key feature of GST. अब GST का GST जो आप पढ़ रहे हो, इसके कुछ की फीचर्स पढ़ लें जो केंद्र बिंदु हैं, जो हमारे सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो सबसे पहले आप जान लो द GST इज द सेपरेटेड इन होल कंट्री। GST पूरे भारत में फैला हुआ है, कोई एक राज्य ऐसा नहीं जो बचा हो, सब में GST फॉलो किया जाता है। दूसरा हम ये कह सकते हैं GST इज एप्लीकेबल ऑन द सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज अगेंस्ट द प्रेजेंट कंपोनेंट ऑफ टैक्स ऑन the manufacturer of the sales and goods provision of services. With the help of that हम ये कह सकते हैं अगर भारत में कोई भी गुड्स और सर्विसेज हमें प्राप्त होती है तो GST उसमें इंक्लूड होता है। थर्ड वी कैन से इट इज द बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ डेस्टिनेशन। ये हमारे किसी भी ट्रांजैक्शन में इंक्लूड होता है, मींस ईच एंड एवरी ट्रांजैक्शन इट शुड बी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर GST। एंड नेक्स्ट वन इज अ गिवन CGST, SGST and IGST. I have explained you here. See CGST, SGST and IGST. Three names are written here. CGST and SGST is including in our state. हम अपने स्टेट में अगर ट्रांजैक्शन करते हैं तो CGST और SGST एडेड होता है, बट आउट ऑफ स्टेट, सपोज आई एम फ्रॉम UP and doing transaction from Haryana, Maharashtra, Punjab, anywhere, then I have to submit IGST. This is the important part. So dear students, don't forget these rules and regulations of GST, and it should be very important part for your education. And now next topic is given in front of you. There are 4 taxes is given: 5%, 12%, 18% and 28% of the goods and services. According to situation, these all percentage we are reading time to time and we are taking GST. And last keyword is given: there is no tax on export on supplies of SEZ. Okay? So now dear students, in front of you I had explained now about the GST, and GST is a very important part of your educational system because you are a commerce student and you have to pay taxes. So now this is a very important part for you. You have to know and suggest it. With the help of this information, you can able to make your notes and prepare it well. If you want to make your notes, you have to pause the video and listen slowly and run it slowly and make your notes simple way. It should be very important part for your accountancy, economics and BST. Thank you all for listening to this lecture. Thank you.